Now, let's move forward and continue our discussion on polynomials. So we have already discussed what a polynomial is. So polynomial was an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube so on an xn. तो as an example, जैसे हमने कहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक तरीके से वी कैन राइट दिस एज वन प्लस एक्स. What is this? This is sort of a0. This is a constant plus what is a1? a1 क्या है? 1 है into x. तो ये क्या है? This is acting like a1. ये क्या है? Polynomial है. Let's say we have px is equal to 2x square minus 1. So how can we write this as minus 1 plus, do we have any term of x? No. We can write this as 0x and then we have 2x square. Now compare this. Now this is acting like a0, this is acting like a1, this is acting like a2, and what is our variable? Our variable is x. So this is what? This is a polynomial. So having learned what a polynomial is, now we go to the next topic, and that is the degree of the polynomial. Now what is the degree of the polynomial? The highest power of the variable present in the polynomial is called the degree of the polynomial. जो हमारा polynomial है उसमें जो वेरिएबल है, द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज वेरिएबल, हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है. पहली चीज तो वेरिएबल की पावर हैज टू बी अ होल नंबर, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन. आफ्टर confirming whether the given expression is a polynomial or not, the next thing that we are looking for is the power of the variable, the highest power of the variable present in the polynomial. जो highest power of the polynomial of the variable है polynomial में, वो हमारी degree of the polynomial कहलाती है. For example, if you look at this example, what is the highest power of the variable? Variable कहाँ है? यहाँ पर है. इसकी power क्या है? 1 है. तो this will be called a polynomial of degree 1. जैसे यहाँ आइए, let's look at this example. ये variable है हमारा, variable की जो highest power है वो क्या है? 2 है. Therefore this will be called a polynomial of degree 2. ठीक है. So now let's take a few examples to understand this concept better. Let's say we have this polynomial. तो पहले तो चेक करिए whether the given expression is a polynomial. तो ये polynomial है क्योंकि variable की सारी powers क्या है? whole numbers है. After simplification. ठीक है, तो इसमें simplify कुछ करना ही नहीं है हमें. तो what is the highest power of the variable? 4. Therefore degree of the polynomial px is 4. ठीक है. We are not concerned with the constant term. Constant term क्या है उससे हमें कोई मतलब है, हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है बस. Now look at this example. This is 6. तो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है. तो therefore degree of this polynomial gx is what? 6. ठीक है. Now we come to this example. Again, at first instance this might not look like a polynomial, but our rule was we have to simplify the expression if possible. तो हम इसे simplify करें तो x raised to power 3 by 2 upon x raised to power half minus x raised to power half upon x raised to power half. तो on simplification it gives you x minus 1. ये तो कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे तो x आ जाएगा. Now यहाँ पावर क्या आ गई? 1. तो जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है, देखो डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल. Once it is a polynomial, then we will look for its degree. तो यहाँ x की पावर हाईएस्ट क्या है? 1 है. Therefore degree of this polynomial hx is what? ठीक है. Let's take another example. Let's say we have this expression. Now at first instance you might say this is not a polynomial because यहाँ पे जो t है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और अगर उसको t को हम ऊपर लेके जाएंगे तो it will become t raised to minus 1. But चेक करते हैं अगर सिंप्लीफाई होके ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाए तो व्हाट वी डू इज वी कैन टेक टी आउट. कॉमन दिख रहा है हमको, t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई t. देखो दिस t and t goes and we are left with just, now we can write this as t plus 3t square plus 4. तो as a rule
कोई ज़रूरी नहीं है, बट मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर एक्सप्रेशन आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स और वेरिएबल, या असेंडिंग ऑर्डर, या तो जो पावर ऑफ वेरिएबल है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट विल मेक योर टास्क अ लिटिल इजियर। तो लेट्स से हम अगर इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो सबसे क्या है 4 आएगा क्योंकि t के पास 0 है इसमें, देन t आएगा, देन 3t स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो तो t है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो देखो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पहले हमको मेक श्योर करना है कि वो पॉलिनोमियल हो, और जब वो हो जाएगा देन वील लुक फॉर इट्स डिग्री, उससे पहले नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो फिर हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। Now let's take another example. Let's take this. We have s square plus 2s plus 1 upon s raised to power minus 2. Now again a child might think कि s raised to power minus 2 आ गया, नेगेटिव पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पर ऑन सिंप्लीफिकेशन अगर ये हट जाए तो हो सकता है ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाए। तो वी कैन राइट दिस एज s square plus 2s plus 1 एंड वी कैन टेक दिस s raised to power minus 2 इन द न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा s square, तो वी कैन राइट दिस एज s raised to power 4 plus 2s cube plus s square। अब हमारा जो वेरिएबल है s, उसकी पावर्स देखिए सब होल नंबर्स हैं और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, therefore the degree of this polynomial ks is what 4। ठीक है, let's take another example। इसमें भी देखिए t raised to power minus 1 है, we'll use the same concept। अब यहाँ पे क्या करेंगे t raised to power 8 plus 1 t square minus 4 and we'll write t। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा t raised to power minus 1 तो पावर पॉजिटिव विल चेंज द साइन रादर। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट अवे 8 नहीं लिखना है, 8 इसकी डिग्री नहीं है बिकॉज अभी हमने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। तो t raised to power 8 plus 1 इंटू टी क्यूब माइनस 4t। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो t raised to power 11 माइनस 4t 9 प्लस टी क्यूब प्लस माइनस 4t। तो ऑलरेडी ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है तो कुछ करना ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहली बात तो पावर सारी होल नंबर्स आ गए, तो ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 11 है, देयरफॉर डिग्री ऑफ pt इज व्हाट 11। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नाउ। अगेन यहाँ पे हमको कहीं भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं दिख रही है, बट ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा है। पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है इसको। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज वॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज x4 माइनस 1। अब चेक करिए जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो यानी डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या है डिग्री ऑफ px इज व्हाट 4। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर हमारा सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही है पॉलिनोमियल में तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही है, बिकॉज आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ पॉलिनोमियल बाय राइटिंग इट लाइक दिस। यहाँ x है तो हम किसके टर्म्स में लिखेंगे x के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ t होता तो हम t रेज़ टू पावर 0 लिख देते, और 0 क्या है होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है डिग्री ऑफ px क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 0 है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास होता px इज इक्वल टू 0, तो 0 क्या है एक रियल नंबर ही तो है, एक कांस्टेंट है, तो आई कुड हैव रिटन दिस एज x रेज़ टू पावर 0। तो इसकी भी डिग्री क्या है डिग्री ऑफ px क्या होता 0। इससे मतलब नहीं कि यहाँ 0 लिखा है, वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल की पावर तो 0 है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस केस डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद टर्म्स लाइक दिस।
बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में फ्रैक्शन हो, इरेशनल नंबर हो, नेगेटिव पावर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर कंसर्न्ड विद द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, और वेरिएबल हमारा t है, तो t तो हमारा जहां जहां मौजूद है वहां पावर क्या है, होल नंबर ही है, तो इट इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म में कुछ भी लिखा हो, वी आर नॉट कंसर्न। तो ऑब्वियसली इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 4 है, तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल pt is what? So I hope you have understood what and how do we find the degree of a polynomial.